मॉर्निंग क्लास 9 शुरू करते हैं। हमने जहाँ का लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था उसके आगे चलते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशंस और हाउ मेनी इयर्स इट हैज़ बीन टेक टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशंस। एट द सेम टाइम वी हैव डन that what are the main features of the constitution's preamble, that is the preamble. So what are the preambles and what is the meaning in that particular, what is the meaning of sovereignty, equality, justice. Now today we are going to discuss about how can we make the changes in the constitutions. The constitution which is made by our constituent assembly, and they have worked out 2 years, they have worked 2 years 11 months and 18 days. Then we have completed our constitutions. So in that provision, is there any provisions that we can change the constitutions? Is there any provisions? So today we are going to discuss about that how can we change, or any changes can be done in constitutions. Now, yes, of course, there is a provisions, because our constituent assembly members, those who have been making the constitutions, they know that in future there will be many changes, new things will occur, new sectors, new subjects will occur. So according to that we have to make the constitutions, according to we have to change. So they have done these provisions also. So in that in the articles 20, in the part 20, articles 368 in the constitution, it is written that for that there is provisions that we can change the constitutions. That means we can add or we can remove the old one. And before that, the process of amendment, and that is called the change in which has been done in the amendment, the changes which has been done in the constitution is known as अमेंडमेंट. तो उसे किस नाम से बोलते हैं? अमेंडमेंट के नाम से. ठीक है ना. तो यहाँ पे कहा गया टिल अब तक 2020 तक, जनवरी 2020 तक अब तक कितनी अमेंडमेंट्स किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? 104. तो आर्टिकल्स पार्ट 20 आर्टिकल 368 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, हमारे प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, द इंडियन गवर्नमेंट if they face any problems, they can go through the amendment, they can change few clause जो है उसको वो change कर सकते हैं. तो currently हमने कितने changes किए हैं? 104 till 2020. ठीक है. तो amendments it is required, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी big constitutions के अंदर हमारे living standards जो है changes हो रही है, religious में belief में changes आ रही है. So for that reason we have to make some changes, so that it is been done in part 20 article 368. Now we will move ahead. Now some example is there, that here we are giving you example of such a country which was once of the most condemned अनडेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड टिल 1994. किसके बारे में कहा जा रहा है? ये वापस साउथ अफ्रीका के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ही अप्रैल 26 अप्रैल 1994 में ही वो डेमोक्रेटिक हुआ था. क्यों? उसके ऊपर कौन रूल कर रहा था? वाइट पीपल, दैट इज़ द यूरोपियंस. ये लोग रूल्स कर रहे थे. ठीक है ना. तो इन्होंने दे हैव फाइट and they have been get democratic in the year 1994 में. तो यहाँ पर कहा गया, and when they made the democratic it was become a model for the world, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने क्या किया था? जो उनके ऊपर रूल कर रहे थे, ऑप्रेस कर रहे थे, दबा रहे थे, उन लोगों ने उन्हें भी पावर दिया, उन्हें भी राइट्स दिए, और सब दोनों ग्रुप्स मिल के ही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया. ठीक है. तो इसके लिए इट वॉज बिकम एन एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका कंसिस्ट ऑफ प्रीएम्बल, जैसे हमारा प्रीएम्बल है उनका भी प्रीएम्बल है. 14 चैप्टर्स है उसके अंदर. सेक्शन कितने हैं? 244 सेक्शन है. अलग अलग चैप्टर्स में सेक्शन 1 2 3 इस तरह से होता पार्ट होती है. उस तरह से शेड्यूल होती है, कितने शेड्यूल्स में इसको कंप्लीट, तो 8 शेड्यूल्स हैं. तो इसी तरह से
बट मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क, क्योंकि इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ पर जो लोग उनके ऊपर रूल कर रहे थे उन्होंने उन्हें भी पावर दिया, इसके लिए उनके साथ मिलके काम किया। साथ साथ ये भी था उनको कि अगर उनको वो पावर देते हैं तो इन फ्यूचर कहीं वो वापस उन पे वो रूल करना ना लग जाए, डिक्टेट करना नहीं लग जाए। तो ये सब चीज़ों को देख के बहुत अच्छे से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। जस्ट लाइक इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद फिर दे हैव सेट टुगेदर, लॉन्ग जर्नी, उन्होंने भी फ्रीडम स्ट्रगल किया, फिर उन्होंने डेमोक्रेटिक रूल्स बनाया। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर साउथ अफ्रीका का प्रॉब्लम क्या था, दे हैव बीन रूल्ड बाय एपाथाइड सिस्टम, एपाथाइड बेस्ड ऑन ऑप्रेसिव रूल्स, जो उनके ऊपर रूल्स जो है दबा रहे थे। एज डिस्कस अर्लियर, द वाइट यूरोपियंस रूल्ड ओवर नॉन वाइट्स। तो जो वाइट यूरोपियंस जो थे वो किस पे रूल कर रहे थे, ब्लैक्स के ऊपर कर रहे थे, और ये बहुत लंबे समय तक चला था। नाउ हु वाज द लीडर, हु वाज लीडिंग दैट, जो उनको लीड कर रहा था वो था नेल्सन मंडेला। ये पिक्चर्स यहाँ पे ब्लैक होगी, आपकी बुक में अच्छी दिखेगी बेटा, अपनी बुक एक बार चेक कर लेना। तो नेल्सन मंडेला था जो जिस तरह से हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी थे, बट महात्मा गांधी ने इन पॉलिटिक्स में उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। आफ्टर दैट ही डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, उन्होंने फाइट में हेल्प दिया था, ही वॉज अ लीडर। बट यहाँ पे नेल्सन मंडेला जो था, उन्होंने लीड करने के बाद ही बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, ही फाइट फॉर द रेशियल, इन्होंने फाइट किया रेशियल ब्लैक एंड वाइट के लिए। इवन जब महात्मा गांधी यहाँ पे गए थे तो ही ऑल्सो फाइट विद हिम, उनके साथ। और आपको पता है इनके लिए इन्होंने जो वाइट पीपल से इनको उन्होंने क्या कहते हैं अरेस्ट किया था, एंड ही वॉज 30 years अंडर प्रिजन, 30 साल तक वो जेल में रहे। यंग में गए थे, सोचो यंग एज में वो स्ट्रगल शुरू किया था, एंड इन्होंने जेल में जाने के बाद, प्रिजन में जाने के बाद भी उन्होंने अपनी वो आंदोलन जो था, फ्रीडम मूवमेंट जो थी, स्ट्रगल जो था वो बंद नहीं किया था, उन्होंने जेल में रह के ही कंटिन्यू किया था। और बिकॉज ही वॉज अ लीडर, वॉलंटियर्स तो बाहर थे, तो उन्होंने सिर्फ गाइड किया था लोगों को अपनी तरह से कि लड़ना नहीं छोड़ना है, हमें लड़ते रहना है। फिर बाद में यूरोपियंस जो थे, वाइट पीपल्स, दे गिव अप, उन्होंने गिव अप कर दिया। और लास्ट में जब ये इनको रिलीज़ किया गया तो ये और बाकी सब और जो लोग थे वॉलंटियर्स सभी मिल के बैठे, और उन्होंने कहा, ब्लैक पीपल्स ने कहा, इवन नेल्सन मंडेला ने कहा था कि भले उन्होंने हमारे साथ बुरा किया लेकिन हम उनके साथ बुरा नहीं करेंगे, वी विल गिव द सेम राइट एज वी आर हैविंग द सेम। और उन्होंने मिल के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, इम्प्लीमेंट किया था। तो दैट वाज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, फिर हम मूव करते हैं फंडामेंटल वैल्यूज़ क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में किसके ऊपर दिया गया है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरह से मैंने आगे बताया था, हमने यूएस से लिया था, इंस्पायर हुए थे, फिर ब्रिटेन से और फिर आयरलैंड से लिया था। ठीक है, आयरलैंड से लिया था। तो इसी तरह से यूएस से हमने क्या लिया था, हमने यूएस से फंडामेंटल राइट्स लिया था, ब्रिटेन से क्या लिया था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, आयरलैंड से क्या लिया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो उसी बेस पे जब उन्होंने अपना बनाया था कॉन्स्टिट्यूशंस अगेन। तो दीज आर द प्रियम्बल, ये हमारा प्रियम्बल है, द फर्स्ट प्रियम्बल जो पेज फर्स्ट कंटेंट है हमारे फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशंस का। तो जो प्रियम्बल शुरू होता है वो इससे होता है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोवरेन? इट मीन्स दैट पीपल हैव सुप्रीम पावर। यहाँ पे पीपल्स के पास पावर है, कोई बाहर वाला इंटरनल पावर हम पर या एक्सटर्नल पावर कोई हम पर रूल नहीं कर रहा। जो रूल करने वाला है वो कौन है? पीपल है, और वही गवर्नमेंट बना के गवर्नमेंट पे रूल कर रहा है। सोशलिस्ट, वी विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, जो भी हमारे पास होगा समाज में सबके साथ मिल के शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। गवर्नमेंट भी रेगुलेट करेगी, ओनरशिप जो होगा लैंड वो सभी को बराबर बांटेंगे। इंडस्ट्री भी रेगुलेट किया जाएगा ताकि किसी के हाथ में पावर अकेला ना हो। इस तरह से ये सोशलिस्ट हो गया। सेक्युलर, दैट इन आवर कंट्री सिटीजन्स हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन्स। कोई भी रिलीजन्स को हम फॉलो करेंगे, हमारे गवर्नमेंट हम पे प्रेशराइज नहीं करेंगे, और हमारा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन्स नहीं है। ऑल रिलीजन्स हैज़ गिवन इक्वल राइट्स, इक्वल बिलीफ एंड रिस्पेक्ट्स। फिर आता है डेमोक्रेटिक, अ गवर्नमेंट, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉयज इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड इलेक्टेड देयर रूलर्स, जहाँ पे जनता के पास पावर है, जनता ही चूज़ करती है रूलर्स को। ठीक है, फिर आता है रिपब्लिक। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? दैट इन आवर गवर्नमेंट देयर इज़ नो हेरिडिटरी, जैसे राजा था, राजा का बेटा राजा, तो वो होता था, जो परंपरा चली आ रही थी, तो वो हाँ वैसा नहीं है।
यहाँ पे जो इलेक्टेड हैं, जो हेड हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स है, जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है हमारा वो इलेक्टेड है। जस्टिस, न्याय सभी को दिया जाएगा। रूल्स आर इक्वल फॉर ईच एंड एवरीवन, आइदर वो कोई कास्ट का हो, रिलीजियस का हो, जेंडर्स का हो, मेल हो फीमेल हो, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिबर्टी, फ्रीडम, आज़ादी किस चीज़ की, आपकी सोच में आप क्या बोल रहे हो, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो, जो भी है दैट यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, बट सम लिमिटेशंस आती है, बहुत ज़रूरी होती है लिमिटेशंस। फिर इक्वलिटी, इक्वलिटी इन फ्रंट ऑफ लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर है, भले वो रिच हो या पुअर हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाएगा। और लास्टली फ्रैटर्निटी, भाईचारा, हम जब तक एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे, एक दूसरे को अपनी फैमिली नहीं मानेंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, बाहर वाले को लगेगा कि इनके बीच में ही भेदभाव है, तो फिर से बाहर वाला कोई आ जाएगा हम पर रूल करने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है दैट वी शुड बिहेव लाइक अ फैमिली मेम्बर्स एंड हेल्प एवरीवन। ये हो गया हमारा। तो ये था प्रीएम्बल का पहला पार्ट, जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट का पहला पेज प्रीएम्बल, उसमें ये चीज़ें लिखी हुई है। फिर उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज मेड अ लॉन्ग बिफोर, हमारा कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है बहुत लंबे समय से पहले जस्ट मॉडलिंग तैयार हो रही थी, क्योंकि हमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स को बिलीव था कि हम एक दिन आज़ाद होंगे, और उसकी पहले से तैयारी शुरू कर दी गई थी। वी शुड फॉलो, वाई शुड वी फॉलो नाउ, अभी कहा जाता है जब उन्होंने इतना पहले बना दिया था ना, पुराना मान लेते, तो फिर आज हम इतनी पुरानी चीज़ को क्यों लेके चले। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज ऐसा बहुत सी कंट्रीज़ है जो उन्होंने अपनी पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशंस को चेंज कर दिया है, ठीक है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट माइनर द ओपिनियंस ऑफ इट्स मेंबर, अगर हम देखेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी एक इंसान का अपना ओपिनियंस नहीं था, उसमें जो लोग बैठे थे उन्होंने बहुत एग्रीमेंट, बहुत ज़्यादा डिबेट्स किया, फिर रीराइट किया, लिखा, फिर वापस चेंज किया, फिर लिखा कि हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए क्या क्या चाहिए। उसके बेस पे उन्होंने जो भी चीज़ें की आज हमें दिखता है और हम उस पर विश्वास करते हैं, लेजिटिमेट, हमें पूरा विश्वास है कि वो रूल जो भी बनाया था लॉफुली था, जिसके लिए आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैसा ही है और हम सब उस पर बिलीव करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से फिर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस a statement of values or something more, is our constitution a statement, सिर्फ एक स्टेटमेंट है लिखी हुई पेपर में या उससे ज़्यादा है, उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि भले वो स्टेटमेंट्स है बट स्टेटमेंट्स ऑफ किसकी, वैल्यूज़ एंड फिलोसफी, सबकी अपनी वैल्यूज़, उन्होंने अपने अपनी राय दी थी, जो राय उन्होंने अकेले नहीं बल्कि सब लोगों ने मिलकर डिस्कस किया था, आर्ग्यूमेंट हुई थी, फिर डॉक्यूमेंट्स बना था उसके ऊपर, सभी डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स में आज भी प्रिजर्व है, अगर कोई भी चाहे तो उस पर ईज़िली वो देख सकते हैं। अमेंडमेंट करते गए, चेंजेस करते गए, बहस होता गया और धीरे धीरे एक न्यू रूल्स जो है बनती गई धीरे धीरे इस तरह से, ठीक है। दे डिड नॉट सी इट एज अ प्योर स्टैटिक एंड अनऑल्टर्ड, और साथ साथ ये भी नहीं, उन्हें ये भी पता था कि इसको प्योर स्टैटिक ऑल्टर्ड मतलब इसको अगर हम ये नहीं चाहें कि इसे हमने बना दिया तो हम कभी चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। इन फ्यूचर इन नीड्स, जब भी होगा टाइम टू टाइम इट कैन बी चेंज, उन्होंने ये चीज़ को भी बताया था। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये प्योर है, स्टैटिक है, ऑल्टर नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारी नीड जो है चेंज होती रहती है, तो वो चेंज हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अमेंडमेंट। तो ये चीज़ें वहाँ पे लिखी गई थी और वो लीगल मैनर पे होना चाहिए, किसी एक इंसान की ज़रूरत पे नहीं। हमें किस पे हमेशा देखना चाहिए, मेजॉरिटी, कि मेजॉरिटी क्या चाहती है, मेजॉरिटी को क्या पसंद है, क्योंकि कंट्री बेस होती है, मेजॉरिटी पे रूल करती है, किसी सिंगल पर्सन पे नहीं। सिंगल पर्सन बोलेगा मुझे ये चाहिए और उसके बेस पे हम उसको राइट्स दे देंगे, लेकिन उसकी राइट्स कहीं दूसरों के लिए क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो सिंगल कभी भी नहीं, मेजॉरिटी बेस पे ही किया जाता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया, हु वाज द गार्जियंस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो देखता है कि अगर कोई भी गलत काम हो रहा है तो वो उन पर इंटरप्रेट रोक लगा सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे अच्छा है। अब तक बहुत सारी कंट्री ऐसी है जो उनकी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गई, लेकिन हमारी कोई चेंजेस नहीं हुई है, हमने सिर्फ अमेंडमेंट किया थोड़ा बहुत, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज किया, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर्स है आज ये ख़त्म होता है और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। उससे पहले फिजिकल ज्योग्राफी जो हमने पढ़ा था, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का, उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग
आपको मैं कल सेंड कर दूँगी, नेक्स्ट डे मतलब फिर हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट अपना चैप्टर्स कंप्लीट करते रहें, नोट बनाते रहें, ठीक है। थैंक यू।